تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس میں ہم آپ کے سوالات لیں گے جو کہ مالی معاملات سے متعلق، تجارتی لین دین سے متعلق ہوں گے، جو آپ کے اشکالات ہیں اور آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی لی جائے اور شریعت مطہرہ کا حکم معلوم کیا جائے، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم اپنے سلسلے میں مختلف مارکیٹس بھی فوکس کر کے اس کے سوالات، ہماری مجلس جاتی ہے، ہمارے اسلام بھائی جاتے ہیں، ریکارڈ کر کے لاتے ہیں، اس کے کچھ سوالات جو ہیں وہ ویڈیو سوالات بھی آج شامل کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی دیکھیں گے۔ آج ہم جس مارکیٹ کو لائے ہیں وہ کون سی مارکیٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور کس سے متعلق ہے، تو بڑی دلچسپ ہے۔ پرندوں کی خرید و فروخت اور پرندوں کو پالنا، پرندوں کو رکھنا، اور بعض اوقات کچھ پرندوں کو کھانا وغیرہ جو ہے یہ معمولات میں ہے، تو اس سے ریلیٹڈ مارکیٹ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے سوالات ہم شامل کریں گے اپنے سلسلے میں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دلچسپ ہوگا، معلوماتی ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آخر تک سلسلے کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم و تورد علی صلاۃ غیرہم، یعنی میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ اس کے علاوہ جو افراد درود پاک بھیجتے ہیں ان کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک ویڈیو سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہروز اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تجارت کی غرض سے پرندوں کی خرید و فروخت کرنا اور شوقیہ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، وہ پرندے جن کی خرید و فروخت کی شریعت نے اجازت دی ہے، شوقیہ طور پر رکھنے کا معاملہ ہو یا پھر یہ ہے کہ تجارت کی نیت سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، تو ان کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اجازت کہاں دی ہے؟ ایک سوال یہ ہے نا، اجازت وہاں ہے جیسے ان کے ہاتھ میں طوطا تھا، تو اس کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو طوطا نظر آ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ طوطوں کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اتنا لمبا چوڑا ماشاءاللہ۔ تو اب بعض جانور ہوتے ہیں خبیث جانور کہلاتے ہیں، جیسے کوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دار و مدار ہے منفیت پر۔ منفیت کے تعلق سے فقہ نے گفتگو کی ہے کہ جو جانور کسی بھی منفیت کے لائق ہے، وہ پرندہ جس جانور کے متعلق بھی یہ کہا ہے، جانور جس کی کوئی منفیت ہے یا پرندہ جس کی کوئی منفیت ہے تو اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، تجارتی مقاصد کے تحت ہو یا گھر پہ رکھنا ہو، شوق ہو، بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ پرندے رکھ رہے ہوتے ہیں گھروں پر، پالتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، اور آپ کی فون کال ہے، فون کال کر کے ہمیں سوال بھیجا گیا ہے، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، زاہد اتاری اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ ایک
چاکلیٹ ہے، اس چاکلیٹ کو کھولنا ہے، اس کو یعنی کہ باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور اس چاکلیٹ کو کھولنا ہے، کھول کر اس میں ایک اور جو یعنی کہ اس کے جو اوپر شاپر وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اس شاپر وغیرہ پر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں ان نمبر کے حساب سے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ ہے اس کے اندر نمبر لکھا ہے 1، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کے مطلب بجائے 2 چاکلیٹ اس کو مزید اس کو فری میں ملیں گی، اور یہاں مثال کے طور پر اسی چاکلیٹ کو کھولیں گے تو نمبر اگر 2 لکھا ہوگا تو 2 کی بجائے اس کو 4 ملے گی. تو اس طرح جو چاکلیٹ لے کر کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مطلب ایک چاکلیٹ خرید رہے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے آفر ہی یہ ہوتی ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک تو کھلی آفر ہوتی ہے لیکن یہاں ریپر میں نکل رہا ہے جو ہے پوشیدہ ہے. ملٹی سلسلہ ہے آج گویا کہ ٹھیک ہے، پرندوں کی مارکیٹ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے اور جو ہمارے ناظرین کی کال آئی ہوئی ہیں جی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. جی. تو دیکھیے اس میں ہو کیا رہا ہے، اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ چاکلیٹ ایک خریدی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ ایک چاکلیٹ یا ایک پیس یا ایک ڈبہ اس کی اتنی قیمت ہے اور وہ مال ہے، ٹھیک ہے، قابل تجارت چیز ہے. صحیح، ایسا نہیں کوئی لاٹری کی طرح کوئی پرچی ہے ٹھیک ہے، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، صحیح، بلکہ ایک مال خریدا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک مال خریدنے کے بعد اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے. اب اس مال کے خریدنے پر ضمناً کوئی بینیفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انعام نکلتا ہے، تو یہ انعام ہے، تو اس کا ریسیو کرنا جائز ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، تو یہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ جناب ایسا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی زیرو نکل آئے، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے چلو ہر ایک سے ہی نکلنا ہے تو بہرحال وہ انعام نکلائے گا. ٹھیک ہے، تو اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جو چاکلیٹس ہوتی ہیں جی وہ مارکیٹ سے مہنگے ریٹ پر دی جاتی ہوں، صحیح ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہوگا. صحیح، یعنی بائی 1 گیٹ 1 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پرائز بہرحال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ سے کوئی بہت زیادہ مہنگی وہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں جو عام بڑی کمپنیاں معاملہ کرتی ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا جی ہے. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی قیمت تو ہے مثال کے طور پر 5 روپے جی اور وہ بیچی جا رہی ہے 50 روپے کی یا 100 روپے کی، ٹھیک ہے، تو پھر ذرا معاملہ نازک ہو جائے گا ٹھیک ہے، کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اس کو مارکیٹ ریٹ سے بہت مہنگا کیوں بیچا جا رہا ہے. صحیح، تو پھر کچھ پہلو جو ہے تھوڑا سا سینسیٹیو آ سکتا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے اگر مارکیٹ ریٹ سے مہنگی چیز بیچی جا رہی ہے کسی اور غرض کی وجہ سے، جی اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب ایک کمپنی کے حوالے سے لکھی ہے، جی المنہ العطیہ، اس کے اندر لکھی ہے کہ اس کے اندر کیا تفصیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، باقی عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، اوپنلی بیان کر دیا جائے، اس کے ٹھیک ہے، ساتھ ایک فری ملے گی ٹھیک ہے، یا ریپر میں ہو. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس وغیرہ ملتی تھی، جی جی ابھی بھی خیر بکتی تو ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نکلتی تھیں زیادہ جی جی، تر. ان کے کیپ میں، ان کے کیپ کے اندر نمبر ہوں گے، آپ جی کو وہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے، پتی وغیرہ میں بھی آج کل آتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، اس میں کوئی نمبر نکل آیا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ شاپنگ سینٹر میں جاتے چائے ہیں، کی پتی مفتی چائے کی پتی میں، جی جی، وہ بانڈ کی جو چلتی ہے نا پرچیاں وہ بھی پتی کہلاتی اچھا ہیں، تو وہی میں اس پتی لیے کھلاتی ہے. ضروری اللہ سمجھا بولنا. اللہ اکبر، یہ تو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، جی نہ جانے کس کس چیز کو پتی کہتے ہوں گے. جی اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی سپر اسٹور پر یہ آفر آئی ہوتی ہے کہ آپ نے 10,000 کا اگر مال خریدا ہے جی جی، تو آپ ایک کوپن بھریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کوپن سے جو ہے وہ آپ کو ایک انعام ملے گا. ٹھیک ہے، بعض اوقات کوپن بھی نہیں بھرنا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی باہر جو ہے ہمارے بندے موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں چلے جائیں، ایک آپ کو چکر گھمانا پڑے گا، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے لیے کیا انعام نکلتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی ڈیجیٹل قسم کھلی کی آفر ہوتی ہے، مختلف طرح کی مشینیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ دے رہی ہوتی ہیں وہ بطور انعام دے رہی ہوتی ہیں. صحیح، ایک چیز کا مشروط ہونا اور چیز ہے، اس کا انعام ہونا اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انعام جداگانہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہیں آئے گا جہاں بیس درست ہو. ٹھیک ہے، بنیاد درست، اگر بیس درست نہیں ہے، صحیح ہے، چیز مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انعام کیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں چونکہ چاکلیٹ مال ہے تو یہ جو صورت پوچھی انہوں نے بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض وحشی قسم کی بلیاں ہوتی ہیں جو انسانوں پہ حملہ کر دیتی ہیں، کیا ان کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اچھا جی، ایسی بلیاں جو انسانوں پر حملہ کر دیتی ہیں،
देखिए, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिसकी कोई ना कोई मनफियत है, ठीक है, उस जानवर की खरीदो फरोख्त जायज़ होगी। ठीक है, जिसकी मनफियत नहीं है, कोई वहशी हमला करने वाला जानवर है, जी, उसकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। फ़ायदा होना ज़रूरी है, कोई ना कोई मनफियत हो तो मनफियत फिर हो। इसकी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है जी। फिर आपकी एक कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मैं मोहम्मद नवाज कराची शहर से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर कोई ब्रोकर किसी पार्टी को मीटिंग कराता है, जगह दिखा के मीटिंग कराता है और पार्टी फिर बाद में आपस में डीलिंग कर लेते हैं और ताल्लुकात इनकी मीटिंग में निकल आते हैं, फिर बाद में आपस में डीलिंग कर लेते हैं, तो इनके ऊपर क्या हुक्म है? और उस ब्रोकर का जो हक मारा है उसको अगर नहीं देगा तो क्या उसका हुक्म होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पिछले सिलसिले में इससे मुतालिक सवाल आए थे, उसी से रिलेटेड सवाल है। जी मुफ्ती साहब। इन्होंने ये कहा है कि पार्टी डायरेक्ट हो जाती है, जी, जी, ब्रोकर को काट दिया, काट देती है। मार्केट लैंग्वेज में यही कहते हैं, ब्रोकर को काट दिया। अखलाकन ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जब आप एक शख्स की खिदमत लेते हैं, वो आपको घर दिखाता है, सब कुछ करवाता ठीक है, है, तो आपको लालच में नहीं आना चाहिए। सही, यानी ये बद अखलाकी एक तरह से है ठीक है, कि आप फिर डायरेक्ट हो जाएं बाद में। सही, उस शख्स को गोया कि आपने धोखा दिया है। ठीक, वो आपको लेकर गया है, आपको ले जाने के बाद उसने दिखाया है, अपना वक्त सर्फ किया है, ठीक, मेहनत की, इस मफाद में किया है कि उसे मुआवजा मिलेगा, उजरत मिलेगी, ठीक है, और आपने उसे काट दिया, तो बहरहाल इसे बद अखलाकी ज़रूर कहा जाएगा और एक मायूब चीज़ ज़रूर कहा जाएगा। ठीक, ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है। मेरा नाम शाहनवाज है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो चिड़ियों को कैद करके रखते हैं और कहते हैं इनको खरीद कर आजाद करो, तुम्हारी मुश्किलें आसान होंगी। क्या इस नीयत से परिंदे को खरीद कर आजाद कर सकते हैं? ठीक है जी, चिड़िया कैद हुई हुई दिखा भी रहा हूँ। चिड़िया हैं, चिड़िया चिड़िया है, सही लफ्ज़। अच्छा, वैसे इस तस्वीर के अंदर जो है वो बहुत दर्दनाक मनाजिर हैं। जी, इतने से पिंजरे के अंदर कितनी सारी चिड़ियों को जो है वो कैद किया हुआ है। जी, तो परिंदों की जो बात हो रही थी, परिंदों जी। के ताल्लुक से हमारा सिलसिला भी बतौर ख़ास, तो फुक़हा ने इनके ख़रीदो फ़रोख्त की, पालने की इजाज़त उसी सूरत में दी है जब इनके बुनियादी राइट्स का ख्याल रखा जाए, ठीक है, दाने पानी का ख्याल रखा जाए। और जो ये मंज़र है, इस मंज़र की इजाज़त नहीं होगी कि इतने सारे परिंदे जो है वो एक छोटे से पिंजरे के अंदर इन्होंने डाल लिए हैं। जी, ना वो उन्हें सांस लेने का मौका मिल रहा है, ना उड़ने का मौका मिल रहा है, ना बैठने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अब इस जो मंजर था, इसके अंदर अगर ये बैठना चाहें तो कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे, कोई जगह नज़र आ रही है आपको? नहीं, तो वो अजियत के अंदर हैं। तो ऐसे पिंजरे के अंदर दो चार ही जो है वो परिंदों की गुंजाइश होती है। चिड़िया भी हैं, दो चार चिड़िया जो है वो आराम के साथ और राहत के साथ बैठ सकती हैं। तो एक तो ये है कि अगर ये हमारा जवाब सुन रहे हैं जी, तो ऐसा तर्ज अमल इख्तियार ना करें। मुमकिन है ये वैसे अपने पास अच्छे तरीके से रखते हो, आप मार्केट में लेकर आएँ बेचने के लिए, तो तब आर्जी तौर पर ऐसा इन्होंने वहशियाना सलूक किया है। तो ऐसे मौके पर भी ऐसा सलूक करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अब इनका सवाल जी, कि लोग जो है आज़ाद करते हैं जी, और उस पर सवाब की जो है वो उम्मीद रखते हैं। तो देखिए, मामला ये है कि हर जानदार रहम का जो है वो मुतकाज़ी होता है, ठीक है, यानी रहम की गुंजाइश वहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे कोई परिंदा है, उसके पाँव में कांटा लगा हुआ है, जी, तो उस कांटे को निकालना सवाब होगा ना, ठीक है, सवाब होगा, ठीक है, उसके साथ भलाई करना कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से परिंदे को आज़ाद करना भी एक भलाई है, ठीक इस है, बात में कोई शक व शुबा नहीं है। सही है, तो अगर कोई शख्स इस नज़रिए से आज़ाद करता है कि भाई ये भी एक नेकी है, जी, तो अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस नेकी में दो फ़ायदे हैं, ठीक है, इसकी तरफ से नेकी भी हो जाएगी, इन लोगों का कारोबार भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी तो ज़ाहिर बात है, कारोबार जब भी कर रहे हैं ना। चिड़ियाँ शौक के तौर पर कौन पालता है? ठीक है, या गुजरावाला के अलावा जो चिड़े हैं वो कहाँ खाए जाते हैं?
हमारे यहाँ बाबुल मदीना में तो मुझे नहीं पता कोई जगह ऐसी हो या चिड़े पकते हो, तो गुजरावाला सुना है, मशहूर है कि वहाँ जो है चिड़े खाए जाते हैं। किसी दिन रखेंगे सिलसिला वहाँ पे भी, ठीक, डिमांड तो है लोगों की, बिल्कुल गुजरावाला से फिर हम भी देखेंगे वो चिड़े कैसे होते हैं। सही है। मुझसे एक पहलू ये था इनके सवाल में कि चिड़िया जो हैं इनको मतलब ये आज़ाद हैं, तो अब ये जो दिखा भी रहे थे ये नॉर्मली हमारे मुल्क में या हमारे शहरों में देखा है कि ये तो आज़ाद नॉर्मली फिरती हैं घरों में इधर उधर, तो इन्हीं को कैद कर लिया पकड़ के। अब देखिए शिकारी का काम तो यही होता है ना, ठीक है, शिकारी का काम है मछलियाँ पकड़ना, सही है, ठीक है, सही है, वो मछलियाँ पकड़ेगा नहीं तो जिनको खरीदनी है वो कहाँ से खरीदेंगे। ठीक, शिकारी अपना काम कर रहा है, जिनको लेनी है मछलियाँ वो अपना काम कर रहा है। ठीक, परिंदों का भी मामला होता है। ठीक। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मुफ्ती साहब मोहम्मद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। मैं एक घर में काम करता हूँ, घर में ड्राइवर हूँ, तो अक्सर गाड़ियों का काम वगैरह करवाना होता है, घर का सौदा सल्फ लाना होता है। तो मैंने मुफ्ती साहब आपकी बारगाह में ये सवाल पूछना था कि अगर मालिक मुझे कहते हैं ये गाड़ी ठीक करवा के लाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा के लेने जाता हूँ, तो अगर 150 वो मुझे बता रहा है, काम किया है 150 बोल रहा था, मैं उसको बोला कि नहीं 140 कर लो, बोलता 140 नहीं होगा 150 होगा, तो उसने मुझे बिल बना के 150 का दे दिया। जब उसने बिल मुझे दे दिया तो फिर उसको बोला मैं तो 140 ही दूंगा भाई, तो उससे बात तय पा जाती है, ठीक है तुम 140 ही दे दो। तो बाद में क्या मैं मालिकों को 150 ही बताऊं या 140 बताना जरूरी है? क्या बिल पे जो उसने लिखा है 150 अपनी मर्जी से उसने लिखा है, मैंने नहीं उसको बोला कि 150 लिखो, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मुझे 150 बताने में वो 10 जो मैं रख सकता हूँ? जी नहीं, ये 10 रियाल जो है ये आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें आपका किसी किस्म का कोई हक नहीं बनता। आप जो हैं वो वकील हैं, नुमाइंदे हैं, और जो काम सुपुर्द किया गया है इससे वैसे ही करना है जिस तरह सुपुर्द किया गया है, और जो सूरत-ए-हाल पेश आई है वही आपने आके बतानी है। तो बाद औक़ात इस तरह के मामलात के अंदर बड़े मसाइल हो जाते हैं। जी, मेरा अभी अपना ज़ाती तजुर्बा है कि पिछले साल उम्र पे हाज़िरी हुई, हम फैमिली के लोग ही थे, जी, एक हमशेरा की फैमिली थी। जी, अब वो बाद जगह जो है ना वो पैसे बिल से कुछ डिस्काउंट हो रहे थे, ठीक है, बिल बना डिस्काउंट हो गए, सही है, ठीक है। अब मुश्किल, ठीक है, ठीक है, मुश्किल यूँ कि 4 अफराद हैं, मैंने टिकट करवाया है, ठीक है, 4 अफराद हैं, उसने 200 रुपये ऊपर के छोड़ दिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब वो 4 पे तकसीम करो, फिर बिल से हिसाब लगाओ, ठीक है, तो ये सारे हिसाब तो लगाने पड़ेंगे। मुश्किल ज़रूर है, बाद वक़्त मुश्किल होता है, जो सूरत इन्होंने बताई उसमें तो कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है, तो हैसियत पर गौर करना पड़ेगा कि ये आपकी हैसियत क्या है, आप अमानतदार हैं, वकील हैं, मालिक हैं। ठीक है, तो आप अमानतदार हैं, जो पैसे कम हुए हैं वो ज़ाहिर बात है आपको मालिक को जाकर देने पड़ेंगे। ठीक, और जब मालिक ये देखेगा कि बिल बना है 150 का और ये मुझे जो है वो बता रहा है कि उसने 140 लिए हैं, ठीक, तो हो सकता है वो खुश होकर खुद ही दे दे आपको 10 रियाल। ठीक है, खैर इस लालच के साथ आपको नहीं देने कि मुझे दे दे ये, तो बिला वजह सवाल की नीयत होगी ना, सवाल की नीयत नहीं करनी चाहिए। और मैंने किताब में पढ़ा था कि जो दूसरों के माल जो तमा करता है ना, दूसरों के माल से अमीर होना चाहता है, ठीक है, तो वो फ़कीर ही रहता है, अल्लाह, वो फ़क्र में रहता है। ठीक, दूसरों के माल पर नज़र होती है और उस दूसरों के माल से अमीर होना चाहता है, गिना चाहता है, वो फ़कीर ही रहता है। तो ये जो आदत है ये सही नहीं है। दिल पकड़ के मजबूत करके बस यही करे आदमी, 1 रुपया भी किसी का ना रखे। है बड़ा मुश्किल ही आजकल जो माहौल है, जो लालच है लोगों की छप्पड़ में पैसा रखने की, मुलाजिम खड़ा है तो गले से कुछ निकालना चाहेगा, सेल्समैन को भेज रहे हैं तो वो को डंडी मारना चाहेगा, किसी को जो है वो किराए के मद में पैसे दिए हैं वो चाहेगा कि कुछ बचा लूँ। मुख्तलिफ़ तरह के जो यानी आपने किसी को कुछ सुपुर्द कर दिया ना माली मामला, तो बस समझें कि सामने वाले की अब आजमाइश शुरू हो गई है। लोग ये नहीं समझते, लोग समझते हैं मौजा हो गई हैं जनाब, ठीक है। हालांकि ये सोचना चाहिए कि आजमाइश शुरू हो गई है कि एक तरह हमारा नफ्स कुछ और कह रहा है और शरीयत कुछ और कह रही है। तो सच्चाई ही में इज़्ज़त है, सच्चाई ही बंदे को ऊपर लेकर जाती है, बुलंदियों तक लेकर जाती है और बंदे का एतमाद पैदा करती है। तो अल्लाह ताला हमें सच्चाई पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے دل میں کہ دیکھیں جی میں تو 150 دے دیتا، اس نے بولا تھا 150 میں 150 دے دیتا اور 150 ہی کی رسید بنوا کے لے آتا، تو یہ جو 5 ریال یا جو بھی اپنی کرنسی ہے جو 5-10 میں نے کم کروائے ہیں تو یہ تو میری ایفرٹس ہیں نا. دیکھیے جس کو بھیجا جاتا ہے نا کہ چیز خرید کر لے آؤ، ٹھیک ہے، اس کو وہ پیسہ لٹانے کے لیے بھیجا نہیں جاتا، نچھاور کرنے کے لیے نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہر خریدار بارگیننگ کرتا ہے، صحیح ہے، اس کے ذمے بھی بارگیننگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ عرف ہے. ٹھیک ہے، ملازم کو اگر کسی نے بھیجا ہے کچھ خریدنے کے لیے تو ملازم میں جا کے بارگیننگ کرے گا. ٹھیک، اور جب یہ ہے ہی ملازم، اس کی جگہ بندے نے اپنے ملازم کو بھیجا ہے، خود نہیں آیا، جی تو اسی چیز کا تو وہ معاوضہ دے رہا ہے، صحیح. انہی کاموں کو تو وہ معاوضہ دے رہا ہے، اسے معاوضہ اپنا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ. جی میرا نام نظر علی ہے اور میں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کتے کی خرید و فروخت جائز ہے؟ کتے کی خرید و فروخت کے تعلق سے فقہ نے بڑی بحث کی ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی اس پر کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس جو کلام کیا ہے، جو علمی بحث کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے جی کہ اگر کتا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کسی کام کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رکھوالی کی حفاظت جا کی نقطہ سکتی نظر ہے، سے. حفاظت جو ہے وہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو بڑا ایک ماحول ہے. جی اصل میں کتے کے تعلق سے زیادہ گفتگو یوں کی گئی ہے کہ اسلام کے اولین دور کے اندر جی کتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں وہ صورتحال نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور پہلے تو مارا بھی گیا، مارنے پہ انعام بھی رکھے گئے، اور کتے کو گھر میں جو ہے نا وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت سے مراد یہ ہے کہ گھر میں رکھنے کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ جس کمرے میں وہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے وہ برآمدے میں ہے تو برآمدہ بھی ایک کمرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ کہتے- حصہ ہے گھر کا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحن. برآمدے کو صحن نہیں کہتے، برآمدے کو کوریڈور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا فلیٹ اگر ہیں ٹھیک ہے، تو ٹی وی لانچ کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، اگر فلیٹس ہیں تو اس ایریا کو ٹی وی لانچ کہتے ہیں. تو جس جگہ کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ کمرے میں ہے تو کمرے میں، ٹھیک ہے، لاؤنج میں تو لاؤنج میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ایک جگہ ہے تو پورے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں لفظ استعمال ہوا بیت. ٹھیک ہے، بیت گھر کو نہیں کہتے، کمرے کو کہتے ہیں، ٹھیک. گھر کو دار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی پسند نہیں ہے ٹھیک ہے، شریعت مطالعہ کے ہاں ٹھیک ہے، کتے کو پالنا، اس کو گھر میں رکھنا ٹھیک. ناپسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ناجائز نہیں کہیں گے. ٹھیک. اور فوائد ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت بھی ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ آج کل جو ایک رواج چلا ہے کہ جو یوں بغل میں اٹھا کے گھومتے کتا، جی جی تو کتے کا لعاب جو ہے اس کا وہ ناپاک ہے، وہ جہاں جہاں لگے گا وہ کپڑوں کو ناپاک کر دے گا. ٹھیک ہے، کتا خود نجس العین نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کتے کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تب بھی اگر اس کو ہاتھ لگا دے تو ہاتھ ناپاک ہو جائے یا گا. وہ کپڑوں سے لگ گیا تو. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہ خشک ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے، تو کپڑوں کو لگ جانے سے ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک، لیکن اگر وہ لعاب لگاتا ہے، تھوک لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوک اس کا بہرحال ناپاک ہے. صحیح. ہاں اگر کتا ایسا ہے کہ گٹر سے نکلا ہے جی، ٹھیک ہے، ناپاکی سے بھیگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹچ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹچ کرنا اب کپڑوں کو جب مس کرے گا تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تری چھوڑے گا وہ اپنی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ طہارت کے مسائل پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، بس صورت دیگر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. کافی تفصیلی جواب اس کا ہو گیا. اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جوابات مل گئے. جو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ بھی اور اس کے جو ضمنی سوالات بنتے تھے وہ بھی آ گئے. ایک آپ کی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی میں محمد اویس رضا تاری، متعلم مدرسۃ المدینہ جبی جاتلاں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی نے اپنی زمین کے امیر کے پاس 50,000 کے عوض گروی رکھوائی کہ جب پیسے ہوئے تو ادا کر کے زمین واپس لے لوں گا. تو کیا جتنا عرصہ وہ پیسے نہ ادا کر سکے اتنا عرصہ امیر شخص زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اللہ اللہ. جی نہیں، رہن میں جو چیز رکھی گئی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ زمین کے کاغذات لے لے،
ठीक है, ठीक है, या ज़मीन को अपने कब्जे में लेना तो कब्जे में ले ले, ठीक है, लेकिन ये है कि उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, जैसे रहन में रखी है, वो अपनी फसल उगाए वहाँ पर, अगर वो किराए पर लेता तो यकीनी तौर पर उसको जो है वो पैसे अदा करना पड़ते। ठीक है, तो उसने जो कर्ज दे रखा था, गोया कि ये उससे फ़ायदा उठा रहा है। सही, जो पैसे अदा करने पड़ रहे थे वो पैसे बचा रहा है अपने। ठीक है, तो ये कर्ज देकर नफ़ा उठाना हुआ, और कर्ज देकर नफ़ा उठाना सूदी मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। एक और वीडियो सवाल शामिल सिलसिला करेंगे जी। मुफ्ती साहब, मछलियों को एक्वेरियम में या जार में रखना कैसा, और जब ये मछलियाँ बड़ी हो जाएं क्या हम इसको खा भी सकते हैं या नहीं? ठीक है जी, वैसे ये मछलियाँ खाई जाती हैं या नहीं? मछली हलाल जानवर है। जानवर कहेंगे, क्या कहेंगे? आबी जानवर ही कहते हैं। आबी जानवर। तो मछली हलाल है सिवाय इसके कि वो अज खुद मर के पानी पर आ जाए, ठीक है, तो हलाल नहीं होगा। अगर बंदा जो है उसको अपनी तदबीर से जी मारता है, ठीक है, खा जो है वो कर्ण देकर मारता है, या जाल फेंक के मारता है, ठीक है, या तालाब में थी पानी निकाल दिया, मछलियाँ बाकी रह गईं, ठीक है, तो ये हलाल होंगी। कांटे से भी निकाल ली तो जी। ठीक है, बगदाद शरीफ से हम लोग बसरा जा रहे थे जी, तो वहाँ ये देखा हमने कि ताज़ा मछली पानी में मौजूद है, ठीक है, और चूँकि वो रास्ते का होटल था, सही है, हाईवे का था, ठीक है, तो तालाब सा बनाया हुआ था एक, जो हमारे यहाँ जो हौज होता है, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं था, ऊपर था, सही है, उसमें मछलियाँ थी। ठीक है, जी, आप तोल कर लें ठीक और है, वहीं पे वो जो है वो उसको मारेगा, ठीक है, और मारने के बाद वो मर जाएगी वो, ठीक है, वो बनाएगा, फिर वो बना देगा। ठीक है, तो मैंने पूरा मुशाहिदा किया ये किस तरह कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक मरतबा सवाल भी आया था किसी यूरोपियन कंट्री से। जी, एक साहब ने कहा था कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हलाल नज़र आ रहा है। हाँ, एक इराकी रेस्टोरेंट है, जी, वो यूं कर रहा है, मार रहा है, बाकायदा थोड़ा लेके जो है वो उसकी जान निकालता है, ठीक है, और फिर वो चीर फाड़ का अमल करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। सही, यानी अगर ये उसके अंदर मछलियाँ हैं तो कैसे मारेगा? हाथ निकाल के बाहर निकालेगा, सही, पानी बाहर बगैर पानी के निकालेगा, रख देगा, पानी तो शायद ना गिराए। एक ठीक। मछली निकाल ली इसने, ठीक है, जब निकाल ली तो वो तदबीर पाई गई बंदे की अपनी, ठीक है, कोशिश खींच रहे, तो यानी इसकी वजह से मरी है वो। ठीक है, छोड़ दे उसको बाहर, जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसको काट ले। ठीक है, तो मछली बहरहाल हलाल है, और इस तरीके से जो निकाली जाएगी तो इससे ये हराम नहीं होगी। मुझसे मुर्दा भी नहीं, रंगों से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुख्तलिफ रंगों की जो नहीं, रंगों से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मछली होनी चाहिए, मछली होनी चाहिए, वो ठीक। लाल हो, सफ़ेद हो, हरी हो, गुलाबी हो, ठीक है, कैसे भी हो। बड़ी जो है वो दिलचस्प मखलूक है। जी, इसकी इफादियत भी इतनी ज़्यादा है, यानी हर मछली की जुदागाना इफादियत है, जुदागाना टेस्ट है, और दिखने में भी हर मछली जुदागाना जो है जी। वो सूरत रखती है। और बड़ी कहानियाँ हैं किताबों के अंदर मछली के ताल्लुक से। अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा रिसाला भी है, मछली के अजाइबात, बहुत प्यारा रिसाला है, बड़ा दिलचस्प भी है, और बहुत सारी आपको दीनी मालूमात भी उससे मिलेगी, तो वो भी पढ़ने की नियत कीजिए। मकतबतुल मदीना से ले लीजिए, या दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप PDF वर्जन जो है उसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इन्होंने सवाल पूछा, एक तो खाने के ताल्लुक से पूछा, जी, दूसरा ये था कि इस जार में रखना। जी, देखें, लोग रखते हैं शौकिया तौर पर, जगह जगह पर मौजूद होते हैं। जी, मैंने इस पे ज़ाती तौर पर गौर किया कि इस पर क्या जवाब देना चाहिए। ठीक है, जो मेरी राय कायम हुई वो ये हुई कि अगर जार बहुत छोटा है ना, ठीक है, और बार बार वो टकरा रही हैं जाके, ठीक है, या मछलियाँ ज़्यादा हैं ठीक है, और टकराव का अमल मुसलसल रहता है, ठीक है, तो देखिए उन्हें अजियत पहुँचती है। ठीक है, ऐसा करने की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी। ठीक है, जार कदरे बड़ा है या मछलियाँ जो कम हैं, ठीक है, वो आराम से घूम लेती हैं, तैर लेती हैं, सही, और कहीं भी टकराने का अमल नहीं होता, ठीक है, ऐसी कैफियत है, तो बहरहाल जार में रखी जा सकती हैं, सही, और इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है, जायज़ ही अमल होगा ये। ठीक है, यानी उनकी खैरख्वाही या उनको जो है बस वो मतलब उनकी सहूलत उसमें मौजूद हो, बिला वजह अजियत ना हो। ठीक है, देखिए, जानवर है ना, जी, जी, जिसे हम ज़बा करके खाते हैं, जी, जी, तो एक अजियत तो वो होती है जो तकलीफ उनके तो है। ज़बा करने पर होती है, ठीक है। ये ज़रूरत के पेश नज़र है। ठीक है, अब ऊँट है, घोड़ा है, गधा है, इस पर बार बर्दारी का काम भी होता है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी ज़ाहिर बात है उसको एक तकलीफ तो मशक्क़त और तकलीफ पहुँचती है, ठीक है, ये ज़रूरत है। ठीक है,
और एक ये कि बिला वजह आप जो है वो ऊँट को इतने बंद उसके अंदर कमरे में कर दें कि उसका सर भी टकरा रहा हो और पीछे हटे तो पीठ भी टकरा रही हो, ठीक है, साइड में भी ना हो, बैठने की जगह भी ना हो, ठीक, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी ना। ठीक, जैसा कि हमने इसी सिलसिले के अंदर वो एक चिड़िया नजर आई थी हमें, चिड़ियों का एक बॉक्स नजर आया था कि वहाँ चिड़िया अगर बैठना चाहे तो बैठने की जगह नहीं है। ठीक है, तो यूं जार के अंदर ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए कि मछलियाँ बार बार जाकर टकराती हों। ठीक है, अब दो सूरतें बनती हैं यहाँ पे। जी, एक तो कि जार बड़ा है, ठीक है, मछलियाँ नहीं टकरा रही, वो सही। आराम से तैरती हैं। सही है, खुराक का भी प्रॉपर बंदोबस्त किया होता है। ठीक है, खुराक का तो जो शर्त है वो तो हर एक के साथ है, परिंदे ठीक। हों, जानवर हों, मछलियाँ हों। ठीक, दूसरी सूरत ये है कि जार तो बड़ा है लेकिन इतनी मछलियाँ भर दी कि अब वो लामोहल्ला में टकराना पड़ रहा है सही, और इन्हें अजियत होती है। बात है, मुंह जाकर टकराएगा, ठीक, अजियत तो होगी ना। सही, ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए। सही। आपने इस सवाल का जवाब सुना, अब शामिल करते हैं आपकी एक कॉल और देखते हैं क्या सवाल हो रहा है। जी, मेरा सवाल ये है कि एक आदमी खाद का कारोबार करता है और वो 5 और 6 माह के बाद पैसे लेता है और 300-400 रुपए नकद जो लेते हैं उससे ज्यादा लेता है। क्या ऐसा करना सूद तो नहीं है? अगर वो पहले से सौदा करते वक्त ये तय कर लेता है कि आप 4 महीने का लें या 6 महीने का लें या साल का लें, मेरे रेट ये होंगे। अगरचे कि वो बारगेनिंग करते हुए ऑफर कर दे, 6 महीने का इतने का दूंगा, साल का इतने का दूंगा, नगद का इतने का दूंगा, बारगेनिंग करते हुए अपनी ऑफर मुख्तलिफ रखना उसका हक है। ठीक है, लेकिन जब सौदा होने लगेगा, सौदा कब होगा? जब सामने वाला किसी एक ऑफर को कबूल करेगा। ठीक, मिसाल के तौर पर वो कहे कि ठीक है मैं 6 महीने में जो है पैसे दूंगा, ठीक है, और कितनी कीमत होगी? इतनी कीमत होगी। ठीक वो है। कीमत पर दोनों मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है, ये अमल सही है। सस्ता बेचना सस्ता बेचना कैश। नगद में, कैश में, और महंगा बेचना उधार में, इसमें कोई कबात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी टाइम ऊपर हो गया तो वो कहेगा जी वो तो मैंने एक कीमत बताई थी आपको 7 महीने वाली भी, ठीक है, अब 7 महीने की कीमत लूंगा। ठीक, ये नहीं हो सकता। ठीक। और ना ही ये हो सकता है उस पर ऑप्शन छोड़ दिए जाएं ठीक है, कि भाई ये 4 रेट आ गए हैं, सही है, आपकी जो सूरत हो जितना जल्दी देंगे उसी रेट पर ये मामला हो ठीक जाएगा। है, 3 महीने की ये, ऐसा 6 नहीं महीने है। की ये। ऐसा नहीं है, क्योंकि रेट सौदा जब हो रहा होता है जी, उसी वक्त यानी मुतय्यन होना जरूरी है ठीक, कि भाई ये रेट है इसका। सही। अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम बिलाल है और मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, क्या झींगा हलाल है और इसके ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में क्या हुक्म है? झींगा, झींगा हलाल है और झींगे को खाया जा सकता है। अलबत्ता केकड़ा जो है उसका खाना हराम है, वो नहीं खाना, उसके खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन झींगा जो है उसके खाने की इजाज़त है। नापसंदीदा ज़रूर लिखा है किताबों में, यानी बाज़ फुक़हा ने, लेकिन बहरहाल हलाल है। ठीक है, अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली बंगश है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि फर्नीचर मार्केट में अगर किसी पार्टी को लेके जाया जाए और उससे बेडरूम की डीलिंग कराई जाए, उसके बाद दुकानदार से कमीशन लेना कैसा है, इसके बारे में थोड़ी हिदायत फरमा दें। ठीक है जी। देखें, अगर तो आपकी पहले से दुकानदार के साथ सेटिंग है जी, कि मैं आपके पास पार्टियां लेकर आऊँगा, आप मुझे कमीशन देंगे, ठीक है, तो ठीक है। आप पार्टी को लेकर गए, आपने अमली कोशिश की और फिर उससे जो मार्केट का उर्फ है उसके मुताबिक मुआवजा लिया, ये जायज़ है। ऐसा नहीं है कि उससे फर्नीचर मार्केट वाले से कभी बेलेग सलेग है हुई नहीं आपकी, ना जान ना पहचान, अचानक से आप पार्टी जो है ना वो घूमते घूमते उसके दुकान पे चली गई और सौदा पूरा हो गया, फिर आप आके कमीशन मांग रहे हैं। ठीक, तो कमीशन तो तयशुदा उजरत का नाम है ना। ठीक जब तय नहीं हुआ था तो वो क्यों कमीशन देगा आपको? सही, दो सूरतें बनी। एक सूरत ऐसी बनी जिसका हमने जायज़ कहा, ठीक, एक सूरत ऐसी बनी जिसको हमने जायज़ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। ठीक है, मुआहदा जो है वो लेन देन की बुनियाद होता है। ठीक है। मुफ्ती साहब, पार्टी यानी जिसको पार्टी को लेके जा रहा है उसे पता ही नहीं कि कमीशन लेगा या नहीं लेगा, या क्या मामला है? देखें, इसके अंदर दो सूरत हाल बनती हैं। ठीक है, एक तो ये बनती है कि पार्टी के साथ कोई चीटिंग का पहलू ना पाया जाए। ठीक है,
भाई मिसाल के तौर पर पार्टी खुद जाती तो सस्ता खरीद कर लेके आती, ठीक है, और ये बजाय सस्ता दिलवाने के महंगा दिलवा रहा है, ठीक है, और खुद जाने का मकसद ये बयान कर रहा है कि मैं जाऊंगा तो सस्ता दिलवाऊंगा, ठीक है, ये धोखे का पहलू होगा। ठीक है, पार्टी इस पर भरोसा कर रही है, ठीक है, अगर ये मार्केट रेट पर दिलवाता है सही है, तो इसने कोई चीटिंग नहीं की है ना। सही है, और जाहिर बात है बहुत सारे वो हैं, गोदाम होंगे, बहुत सारे फर्नीचर वाले होंगे, ठीक है, शोरूम होंगे, ठीक है, तो वो चाहेंगे कि ब्रोकर हमारे पास ग्राहक लेकर आए, ठीक है, तो ये अगर बतौर ब्रोकर के काम करता है तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। ठीक, तो जाहिर बात है हर एक अपने ताल्लुकात से कस्टमर लेकर आता है, ठीक, इनके लिए काम करेगा, इनका भी काम होगा, इसका भी काम होगा। ठीक। अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी सर जी, सवाल है, मैं उम्रे पर जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं चुपूंगा, फिर वहाँ से चुपके से मैं काम करूंगा और उम्रे की ज़ियारत भी करूंगा, ये जायज है या ना जायज है? ठीक है, उम्रे पर जाएंगे, काम भी करेंगे वहाँ पे। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है, तो नीयत किधर की है ये एक बुनियादी चीज़ है। ठीक है, अव्वलन तो ये है शरई एतबार से जी, कि शरई एतबार से अगर किसी की नीयत उम्रे पे जाने की ही है, ठीक है, तो उससे उम्रे पे जाने का सवाब बहरहाल मिलेगा। ठीक है, अगर उसका असल मकसूद जो है वो काम है, ठीक है, कारोबारी कोई मामला है, काम है, ठीक है, कारोबारी मामला है, तो वो जो सफ़र का सवाब है ना, जी, वो बहरहाल इसे नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्रे का सवाब मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर जब जाके कारोबारी मामला निपटा लिया, फिर इसने उम्रे का इहराम बांधा जहाँ से शरीयत का तकाजा है, ठीक है, फिर जब उम्रे के लिए जाएगा तो फिर उसका सवाब मिलेगा। सही, एक होता है ना घर से सवाब मिलना, ठीक है, इसमें कलाम है ठीक है, ठीक है, कि जब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तो घर से जो सवाब मिलने का मामला है उसका जो हुक्म है सही, वो एक अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं हम कानूनी मामले के ऊपर। अब उम्रा जो ज़ायरीन है, जाहिर बात है इन्हें कारोबार की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, उम्रे का इनको जी इजाज़त मिलती है। अच्छा, फिर ये होता है कि काम की भी नीयतें होती हैं। सही, भाई एक आदमी जो है वो मिसाल के तौर पर अपने साथ 2-4 ऐसे आइटम ले जाए कि कानून जिसको अलाउ करता है, सही, ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर 2-4 सूट रख के ले गया कोई, सही, कानून नहीं रोकता इससे, सही, 2-4 सूट से, सही है, और वो वहाँ जाके इसने बेच दिए, सही, कानून नहीं रोकता। ठीक है, हाँ, अगर ये वहाँ जाके मुलाजमत इख्तियार कर लेता है, ठीक है, वहाँ जाके किसी की नौकरी इख्तियार कर लेता है, ठीक है, या छुप जाता है, उम्रे का वीज़ा लेकर गया, वापस आता ही नहीं है, ये गैर कानूनी मामलात हैं और बड़ी सख्ती है अरब में इस हवाले से, बहुत सख्ती है। तो जुदागाना चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई आते हुए परफ्यूम ले आया, ठीक है, 2-4 डब्बे, सही है, तो 2-4 डब्बे से कानून भी नहीं रोकता। सही है, ज़्यादा क्वांटिटी होती है इससे कानून रोकता है। ठीक है, जैसे मोबाइल के बारे में मशहूर है कि 2 सेट ला सकते हैं, अब पता नहीं सही है या नहीं, तो अगर 1 सेट की इजाज़त है तो 1 लाया जा सकता है, 2 की इजाज़त है 2 लाए जा सकते हैं। सही, लेकिन बाद लोग अपने इन मुक़द्दस सफ़रों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो स्मगलिंग के दायरे में आ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। और बिल्कुल गैर कानूनी मामलात होते हैं वो, कि अगर इनकी तलाशी हो जाए जी तो बिल्कुल 100% पकड़े जाए। सही, तो ऐसे लोग अपने आप को ज़िल्लत पर और रुसवाई पर पेश करते हैं और कानूनी गिरफ्त में आएंगे तो या तो इनको जेल जाना पड़ेगी, ठीक है, या रिश्वत देनी पड़ेगी। दोनों सूरतों में नाजायज़ काम के मुर्तकिब होंगे ठीक है, कि अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना भी जायज़ नहीं है और रिश्वत देना भी जायज़ नहीं है। सही, तो उम्रे पर जाना नफली काम है, फ़र्ज और वाजिब नहीं है। किसी किस्म का गैर कानूनी मामला ना करें और बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं तो वहाँ तो बहुत मोहतात लेकर जाना है। बाद लोग अपने सादापन के अंदर जो है, सादगी के अंदर वो मारे जाते हैं। जैसे एक जाने वाले, जी हाँ, जाने वाले एक काफ़िले के बारे में मुझे पता चला कि कोई साहब जो है वो गोलियां रख के ले गए। ठीक, उन्होंने किसी ने उनको तरगीब दिलाई कि ये जो गोलियां हैं इसकी बड़ी डिमांड है वहाँ पे। ठीक, वो इसकाते हमल की दवाइयाँ थी। ठीक है, एयरपोर्ट पे पकड़े गए, ठीक है, जेल हुई, कैदोबंद की जो है ना सूरत इख्तियार करनी पड़ी। तो कानून जिन चीज़ों को ले जाने से या वहाँ से लाने से रोकता है, उसको इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। अब
एक और बात यहाँ पर बड़ी दिलचस्पी आती है कि कानून कैसे पता चले। ठीक है। अब जो रिलेटिव होते हैं या जिनके मफादात होते हैं वो कानून की अपने अंदाज में तशरीह कर रहे होते हैं। ठीक है। नहीं जी ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता, ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो मोहतात रास्ते हैं जहाँ से परफेक्ट मालूमात मिल सकती हैं, ठीक है, उन मालूमात को इख्तियार किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज जो है उस पर हमारे लाइव सिलसिले ऑन एयर होते हैं, जाते हैं, रिले होते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे, एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना